known as a very self-confessed kind of a liberal Democrat, and which is why there have been a lot of oppositions from the RSS as well. So do you think, was this taken as some kind of a shortcoming by the BJP? How did the BJP camp see this really, except for the ones who were close to him in the inner circle? I think the BJP, I mean, agreeing to his vice presidential candidacy was a decision taken at the top in the inner circle sort of thing, not the majority rank and file whether they had an approval or not. I think this is the new strategy. Remember when Mr. Nitin Gadkari became the president of the party and he tried to bring back all the people who have left sort of, and Mr. Jaswant Singh was one of them, that they wanted to sort of build up and mend fences in many ways because they felt that they needed these people, that they needed a man like Jaswant Singh among their leadership ranks so that he would present a respectable face. Now, is he a liberal Democrat in the classical sense of the term? I'm not too sure. Perhaps he really fits in with the conservative mold without being communal. I mean, here unfortunately we don't make the distinction between conservative and communal. Right. He's a conservative politician, and perhaps he would have fitted in at one point of time with a party like Swatantra Party, right-wing, conservative, but not communal. And one is not very sure whether he's pro-market or he's a market-oriented person. I think economy-wise he would perhaps be more nationalist. I mean, I think he gives a very fine, nuanced sense to nationalism than what you would associate with BJP, which is more militant, which is more, put it bluntly, a crass kind of nationalism. चलिए, तो अब एक और अहम चीज जो कालू साहब जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दो कैंडिडेट हैं और यहाँ पर हम चाहेंगे कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें, हामिद अंसारी साहब हैं, दूसरी तरफ जसवंत सिंह साहब हैं, और दोनों के बारे में, दोनों के साथ आपने काम भी किया हुआ है, तो एज अ पर्सनालिटी और इस पोस्ट के लिहाज से अगर हम कंपेयर करें तो आप क्या पाते हैं? बिफोर आई कम टू दैट, आई थिंक सिंस इट्स बीइंग मेंशन्ड एंड करेक्टली दैट Mr. Jaswant Singh has always been considered as a person with an inclusive approach. There is a strange connection between Mr. Ansari and Mr. Jaswant Singh, and let me sort of mention that. And I hope I have your indulgence for a few minutes. No, please, please. Mr. Ansari has been truly one of our outstanding diplomats. There's no doubt about his immense qualities of head and heart. He's been especially an authority and been recognized as such about the West Asian region as a whole, and he's been respected tremendously there. He served as our ambassador with great distinction to Saudi Arabia. Now, in Saudi Arabia, he's enjoyed great respect, and that is where Mr. Jaswant Singh too had made a mark. It's known to some people at least that Mr. Jaswant Singh, as the External Affairs Minister, visited the Saudis. And the impression that he made on the Saudi king and the Saudi ruling circles was remarkable. I think the Saudis felt that there was a connection of the desert somehow between the two. And in a remarkable gesture, the Saudi king then said that since Mr. Jaswant Singh has been known to be fond of horses and horse riding, in a tremendously remarkable gesture, he sent a pair of the finest Arabian horses as a gift to Mr. Jaswant Singh, flown in a special Saudi aircraft to India, which I believe Mr. Jaswant Singh later gave to the presidential bodyguard. Okay. So that is where I draw a connection, that the Saudis and in the Gulf as a whole, they saw in Mr. Jaswant Singh a person with a very broad, perhaps conservative outlook, but certainly with no communal taint. And Mr. Ansari too, in the same region, has enjoyed enormous respect. But Sanjeev, you really believe that by fielding Jaswant Singh in this context, it has really lent certain kind of seriousness, a kind of stature to the vice presidential poll? Yes, I think so. Because any other candidate wouldn't have lent himself to so much of discussion and, you know,
frankly, last half an hour or so, we have, and I think quite deservedly, praised Jaswant Singh a lot. so, you know, any other run-of-the-mill politician, or not run-of-the-mill, why call politicians run-of-the-mill in the first place? See, we would have been having a different kind of a discussion because otherwise it's such an open and shut election. Yeah. So it's nice to be on a balanced television newsroom where you're trying to discuss the finer points of each of the candidates' personality. But in such an open and shut election, you know, the other candidate wouldn't have deserved much attention, if you may. But being Jaswant Singh, you know, he can kind of garner that out and extract that bit out for himself in these discussions. If I can just say 1 minute, that those horses story, which Mr. Karju was referring to, actually had a little bit of a, for lack of a better word, a little bit of a tragic end, because Jaswant Singh ji, I think, grew very fond of those horses. But he wasn't allowed to that's a strange connection which, you know, really do his horse riding in the presidential and that's the connection which he was talking about between Jaswant Singh and Mohammad Hamid Ansari. It was a little bitter, Mr. Jaswant Singh, who gave away the horses. And but that's another story. But you know, the other, just one line. I don't want to reduce it to simplistic things, but the other thing, quality, which in the 80s and 70s, remember the Indian political milieu, especially the North Indian political milieu, when Jaswant Singh was first coming into his own and he worked out of Masjid Mode, then Hotel Claridge's, he had a small office. Both Bhairav Singh Shekhawat and later Atal Bihari Vajpayee, they were absolutely, in Hindi the word is Abhibhut, and in English the word is, you know, they were completely floored by his English. Because both were a little, English was not their strong point. And seeing one of them, you know, so there were very many qualities of his which kind of endeared him to different leaders at that particular time. दोनों कैंडिडेट्स की हम कंपेयर करें संजीव जी, तो किस तरीके से आप कंपेयर करते हैं इस पोस्ट को लेकर, उपराष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हैं दोनों? देखिए, मेरे पास उस तरह का रिंग साइड व्यू नहीं है जैसा काटजू साहब के पास है, क्योंकि काटजू साहब एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं और काटजू साहब ने अंसारी साहब को भी करीब से देखा है, उनकी कार्यशैली को करीब से देखा समझा है। जसवंत सिंह जी को मैं एज ए राजनेता ज़्यादा जानता हूँ, उस तरह के उनकी ऑपरेशनल जो नुआंसेस हैं वो मैं जितनी काटजू साहब समझते हैं नहीं समझ सकता। लेकिन एक बात पे मेरे ख्याल से हर जना सहमत होगा कि दोनों जो शख्सियत हैं वो बड़े ही नेक दिल किस्म के लोग हैं, बड़े साफगोई पसंद लोग हैं, जो अंदर है वो बाहर है। एक अच्छी उनका जो इतना लंबा दोनों, अब अंसारी साहब भी शायद 70s में हैं अपने, जसवंत सिंह जी भी नियरली 70s में एंटर कर चुके हैं। बाय एंड लार्ज ब्लेमिशलेस करियर है, साफ सुथरी छवि है। जिस किसी से भी आप रास्ते चलते व्यक्ति से भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझदार हो, उससे पूछेंगे भाई ये कैसे हैं, वो कहेगा अच्छे लोग हैं। सो यू नो, एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए इस स्टेज में अपनी जिंदगी के अगर आप ये कमेंट एक मेजॉरिटी ऑफ लोगों से डिराइव कर सकते हैं अपने लिए, आई थिंक इट गोज एज बिग क्रेडिट टू देम। दे आर ऑफ कोर्स वेरी यू नो accomplished, but apart from being accomplished, being good human beings and good people, well-read people, intelligent people, intellectuals, all of that also means a lot. If you permit me, I think I'll use an old-fashioned word. Okay. They are both men of great honor, a great sense of honor, a quality that is sadly dissipating in our public life. Right. Absolutely. There's no doubt about it. In fact, Pradeep, now I'll come to you. Talking about Mohammad Hamid Ansari's personality. Of course, the numbers are heavily loaded in his favor. We all know what the results of the vice presidential elections are going to be. But what do you feel? I mean, as a chairman, he has proved himself. He has an unblemished career. As a vice president, he has proved himself. What do you really feel would now be the biggest challenges for Mohammad Hamid Ansari, now when he becomes the vice president? नहीं, देखिए, उनसे पहले भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने राज्यसभा का कामकाज, बहस का स्तर दोनों सुधारने की कोशिश की। अंसारी साहब ने उस काम को आगे बढ़ाया। उनके ऊपर 5 साल उपराष्ट्रपति रहे हैं, पूरा होने जा रहा है कार्यकाल, कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा पक्षपात का, सिर्फ एक मामले को छोड़कर, वो लोकपाल बिल का मामला है, जिस पर वो शायद थोड़ा सा अलग कर सकते थे, उनके पास गुंजाइश थी, थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकते थे। वो एक मुद्दा है जो जिस
जिसने मौका दिया विपक्ष को उन पर आरोप लगाने का। And in fact, government also gave a lot of clarifications on that. But what do you really feel? I mean, what are the biggest challenges for him at the moment once he comes down to the post of the vice president again? What are the biggest challenges ahead of him? देखिए, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है राज्यसभा को। ये उम्मीद की जाती है कि वहाँ बहस का स्तर, वहाँ जो चर्चा होगी वो अलग तरह की, एक अलग स्तर की होगी। जो सभापति होता है उसकी बड़ी भूमिका होती है उसमें। जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन आवर को पीछे किया कि पहले ही हंगामा शुरू होता है और हाउस पूरे दिन के लिए हाउस का कामकाज ठप हो जाता है, उसका असर पड़ा है। तो उसको इम्प्रूव करते, मतलब आपने अच्छा किया, अब और अच्छा करने की चुनौती आपके सामने होगी। तो ये उनके लिए होगा। और एक जो ये दाग लगा है, शायद उसको भी धोने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का उनका आचरण हो, इस तरह का काम हो कि विपक्ष या कोई भी एक आपको उदाहरण दे, पुरुषोत्तम दास टंडन लोकसभा के स्पीकर थे और 5 साल जब तक वो स्पीकर रहे, लगातार कांग्रेस की सभी बैठकों में शामिल होते रहे। उनसे लोगों ने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, स्पीकर हैं और बैठकों में जा रहे हैं पार्टी की। उन्होंने कहा कि दोनों को मैं अलग अलग करके देखता हूं। कुछ लोगों ने सदन में ये इशू उठाया कि भाई आप स्पीकर भी हैं और पार्टी के फंक्शनिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सक्रिय हैं। उन्होंने कहा अगर सदन का एक भी सदस्य खड़ा होकर कहे कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने कोई पक्षपात किया है तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। तो अंसारी साहब का भी स्टेचर, मेरा मानना है कि उस तरह का, इस एक घटना को अगर छोड़ दें तो उन पर इस तरह का पक्षपात का आरोप। संजय जी, जिस तरीके का हामिद अंसारी जी का जो अब तक का बैकग्राउंड रहा है, अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें या फिर उनके दूसरे प्रोफाइल की बात करें, और कांग्रेस ने शायद इसलिए देर नहीं की उनके नाम को अनाउंस करने में, और तमाम सहयोगी थे वो एक साथ उन्होंने मोहर भी लगा दी, यानी कि बेस्ट कैंडिडेट क्या माना जाए कि जैसे कि हम बात करें जसवंत सिंह जी की, वही कुछ हाल, उससे भी बड़ी एक तस्वीर यूपीए के अंदर नजर आ रही थी। बिल्कुल, देखिए एक सबसे पहले प्रदीप जो बात कह रहे थे उस पर अगर एक और टिप्पणी की, थोड़ा सा ऑफकोर्स वो एक विवाद का मुद्दा रहा, वो एक इंसिडेंट, लेकिन उसमें भी देखने का नजरिया हो सकता है और अलग अलग नजरिए से आप उसको देख सकते हैं। विपक्ष के नजरिए से देखें, सत्ता पक्ष के नजरिए से देखें, किसके, तो हर चीज की भारत इतना एक खास तरह की जगह है कि उसमें एक देयर इज इनफ लीवे कि आप चीजों को अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करें। बट वो एक मुद्दा ऐसा रहा जिसपे चर्चा रही, विवाद रहा, इस तरफ या उस तरफ। जैसे अब रही हामिद अंसारी साहब की बात, देखिए हामिद अंसारी साहब का एक तो खास बात यह है कि एक पुस्तक का विमोचन हुआ था उपराष्ट्रपति भवन में, तब ये रनअप, ये मेरे ख्याल से मई की बात है शायद, जब कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं होते, अप्रैल एंड या मई के शुरू में एक कांग्रेस सांसद जो बाद में बड़ी चर्चा में आई, मीनाक्षी नटराजन कि उन्होंने कौन सा प्राइवेट मेंबर्स बिल लाई थी, बहरहाल उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी 1857 पे, उसका विमोचन हुआ था और वहां पे एक आध पत्रकार थे, मैं भी था, तो मैं उस दिन ऑब्जर्व कर रहा था, मेरी कोई खास बात नहीं हुई थी हामिद अंसारी साहब से, लेकिन तब ये चर्चा थी कि ये रिपीट होंगे क्या, या इनको प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार को बनाया जाएगा कि नहीं। तो मेरे जो जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ व्यक्तिगत रूप से, कि जो उनकी डिप्लोमेट की क्वालिटी थी, या कहीं ना कहीं उन्होंने 3 महीने तक, पिछले 3 महीने लगातार, इवन उस दिन जिस दिन नॉमिनेशन भरा है उस दिन ही शायद वो एक स्टेटमेंट अपना प्रिपेयर करके नहीं आए थे। अगर वो प्रिपेयर्ड होता तो कुछ ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या अलग ढंग से आता, तो उन्होंने शायद ये ठान ली थी कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, सो दिस वे और दैट वे, इस मुद्दे पे या उस मुद्दे पे। तो जो उनका एक बिल्कुल, चाहे हम उसको साइलेंस कहें डिप्लोमेटिक, चाहे उन्होंने अपना पोकर फेस बना के रखा, उन्होंने अपनी मन की बात बिल्कुल मन में रखी और एक बहुत अच्छी, सौम्य, डिग्निफाइड तरीके से स्वयं को कंडक्ट किया उस सारे हंगामे के बीच में कि आप प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, रह रहे हैं कि नहीं। और फिर जिस तरह से लास्ट मिनट एक तरह से प्रणब मुखर्जी ने उनको पीछे छोड़ा, वो आगे निकले, उस समय भी उन्होंने वही अपना संयम सब बना के रखा, डिग्निटी। और कहीं ना कहीं जब उपराष्ट्रपति पद का रीनॉमिनेशन हुआ, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक है, सो थ्रू आउट दिस फेज जो उनका कार्यकाल रहा, वो उसी तरह से चलते रहे, एवरीथिंग इज नॉर्मल, विच इज आई थिंक क्वाइट रिमार्केबल, बिकॉज पॉलिटिशियन जो होता है वो कहीं ना कहीं उसकी वो गार्ड स्लिप हो ही जाती है, वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा वाक्य, किसी को कुछ ऐसा बोल देना। हामिद अंसारी की तरफ से पिछले 3 महीने में एक लाइन, जिसको बोलते हैं लूज टॉक या कोई हल्की बात,
कहीं निकल के भी नहीं आई, Stoic उनके silence, आसपास के अधिकारियों से किसी से भी नहीं, which I think is remarkable. In fact, I was about to come to you, Ambassador Kajju. I mean, these remarkable quality which Sanjeev has just pointed out about Mohammad Hamid Ansari. I'm sure he must have functioned in a similar manner when he was a diplomat. Right, exactly. So could you also share some experiences? I don't think there have been very few people in our diplomatic service, in the foreign service, who've been as professional as Mr. Ansari. In fact, in the last program, I mentioned to you that I went to the embassy in Abu Dhabi when he was the ambassador, when I just completed my training. So in many ways, I consider him my guru, diplomacy. And that is the remarkable thing that I learned from him, which stood me well all through my diplomatic career, that patience, sobriety is the hallmark of a diplomat, and also that a diplomat should listen more and speak less. So the point that Sanjeev was making, I think he was then displaying the enormous skills that he has always had and has displayed all through his diplomatic career, of being an absolutely top-rate diplomat, and he's been respected for this, not only within India but also abroad. That he's a person with very sound instincts, and above all a great gentleman like Mr. Jaswant Singh. That is why I was telling you that both Mr. Jaswant Singh and Mr. Ansari are men of honor, and at the end of the day, again to use an old-fashioned word, they are gentlemen. और पर जिस तरीके से दूसरे जो मेहमान हमारे कह रहे हैं कि बहुत अहम होता है इतने बड़े पोस्ट के लिए, अगर आपका कहीं भी चर्चा एक होती है तो एक सेल्फ प्रमोशन भी नजर आता है कई बार, जिससे बिल्कुल अलग रखा खुद को हामिद अंसारी साहब ने, संजीव जी कह रहे हैं कि और इस तरह से एक कद भी बढ़ता है उस पोस्ट का, और जो कैंडिडेचर है उनका भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कद बढ़ता है. So that's true. I mean, they have lent a big credibility and increased the stature of the post they are holding. And I think with Mr. Ansari, he's a very cultivated mind. I mean, the gentleman, of course, encompasses that everything. He's intellectually cultivated, a fine sense of humor, and he doesn't wear his learning on his sleeves. He takes it lightly, and that's quite a pleasing quality to come across in a public man. But I think between Mr. Jaswant Singh and Mr. Ansari, I think apart from the fact that he is a UPA candidate, Mr. Ansari would be at a disadvantage in terms of political experience. If we are looking, you know, we have been looking at the discussion in the last couple of months is, do we need an apolitical man for the president and a political man for the vice president, or a decent politician? Now we have found a decent politician like Mr. Pranab Mukherjee going into the president's office. Do we need also a political vice president who can manage? बिल्कुल, इस वक्त जो सीधी तस्वीर है जसवंत सिंह के घर से, और जहां पर कुछ ही देर के बाद जो खबर मिल रही थी करीब 11:30 के बाद जसवंत सिंह वहां से निकलेंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और ऐसी उम्मीद जो थी बिल्कुल उसी के मुताबिक जो तय समय था उसी हिसाब से इस वक्त बढ़ती हुई गतिविधियां, और अब यहां से जसवंत सिंह पहुंचेंगे संसद भवन, जहां पर वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और देखना अहम होगा कि उनके साथ नीलू कौन से तमाम नेता बीजेपी के अलावा अगर बात करें दूसरे सहयोगी दलों के, वो कौन से वहां पर शामिल होंगे. In fact, Jaswant Singh is already in the car, and the car is just about to leave for Parliament House, where he'll file his nomination. Remember, it's a significant day. Just 3-4 days ago, Mohammad Hamid Ansari had filed his nomination, and now we see the NDA candidate Jaswant Singh, who would be filing his nomination in just a short while from now. Here is the black car in which Jaswant Singh is there, and he's heading for Parliament House, where he would be filing his nomination. उम्मीदवार हैं तो उम्मीद से भरे हुए हैं. कितने कॉन्फिडेंट है आपको? लग रहा है कि आपको मजा तो मैं तराजू लेके तोलूं आपके लिए. चलो. उनकी पत्नी उनके साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए संसद भवन परिसर की ओर घर से निकले हैं, और जैसा कि उन्होंने पत्रकारों से कहा कि उम्मीदें हैं, उम्मीदवार हैं, और उम्मीदवार उम्मीदों के सहारे ही आगे बढ़ता है. बहुत अहम भी है प्रदीप जी. और जिस तरीके से जो चर्चा ये है कि असल में
एक कुनबा दिखाने की और कुनबे की ताकत दिखाने की भी कोशिश हुई है नॉमिनेशन के दौरान। यहाँ पर किस तरह की उम्मीद देखते हैं कि इन चेहरों को आप कुछ देर के बाद वहां पर नजर आ सकते हैं? नहीं, देखिए, एनडीए के लिहाज से देखिए तो एक अच्छी बात ये हुई है कि एनडीए इंटैक्ट है, कम से कम वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पर। और उम्मीद है कि कुछ नए साथी भी जुड़ सकते हैं, जैसे एआईडीएमके अभी कुछ कहा नहीं है, नवीन पटनायक का बीजू जनता दल, ये दो पार्टियां जुड़ सकती हैं। इसके अलावा छोटे मोटे कुछ और समर्थन मिल सकते हैं। तो जो स्थिति या स्ट्रेंथ राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की थी, उससे ज्यादा उपराष्ट्रपति के चुनाव में होगी। तो पॉलिटिकली देखें तो एक माहौल बना, जो ये राष्ट्रपति चुनाव के समय बना था कि एनडीए बिखर गया, बिखराव आ गया, टूट गया, बीजेपी अलग थलग पड़ गई, वो चर्चाएं थोड़ी थमेंगी, तो उसका एक फायदा मिलेगा। यूपीए में इस समय जो चल रहा है, उसका ये सब केवल साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, इससे कोई पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होने जा रही है, ऐसा नहीं है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं हम पंचानन। तो जसवंत सिंह निकल चुके हैं घर से और आप लोगों ने बातचीत भी की और खासे जो है उम्मीदों से भरे नजर आए हुए जसवंत सिंह। जी हाँ, देखिए, जसवंत सिंह अपने घर से अपने निकल चुके हैं। उनके साथ उनकी पत्नी थी और उनका लड़का था। वो संसद भवन की ओर गए हैं और वहाँ से वो जो है वो पार्टी लीडर के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनसे जब पूछा गया कि कितनी उम्मीदें हैं आपको अपने कैंडिडेचर से, तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवार हैं तो उम्मीदें हैं ही। तो इससे लगता है कि जसवंत सिंह जो है वो उनको उम्मीदें तो हैं। कविंद्र, एक जो पंचानन जो खासी चौंकाती है तस्वीर कि असल में जब इस तरह के नामांकन होते हैं तो एक बड़ा काफिला निकलता है, कई बड़े नेता घर पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर कुछ तस्वीर अलग थी। अब ये कविंद्र इस बात को आप कह सकते हैं, क्योंकि कल भी यही हुआ था जब पीए संगमा जो कि बीजेपी समर्थित एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके साथ भी यही था कि वो अपने घर से अकेले निकले और अकेले ही आए थे और उनके साथ कोई काफिला नजर नहीं आया। और जबकि उसके विपरीत जो यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी थे, उनके साथ पूरा एक बड़ा काफिला था। तो कुछ बात यहाँ पे भी नजर आ रही है, लेकिन अब इसका कारण क्या है और क्या ये चीजें हैं, ये अब आपको संसद भवन में जाके ही पता लगेगा कि कितना समर्थन उनको हासिल है। चलिए, शुक्रिया पंचानन इस पूरे अपडेट के लिए, शुक्रिया आपका। तो नीलू, बहुत अहम है कि जैसे कि पंचानन भी कह रहे थे, हम लोगों ने देखा भी पिछले 2 दिन में कि जब नॉमिनेशन के वक्त जो दोनों ही खेमे हैं, वहां पर तस्वीरों में कुछ चेहरे या फिर गाड़ियों के काफिले की बात करें, थोड़ा सा अंतर नजर जरूर आ रहा है। Absolutely. In fact, this nomination filing event is actually an event of show of strength. What have you seen, Sanjeev, earlier I mean, previously also, presidents and vice presidents have filed their nomination. Has it always been like that? Has it always been a kind of show of strength, or have you seen some kind of a paradigm shift, I would say, as far as the process is concerned? See, I think the world wants to be with the winner. So the crowd also throngs that venue. Leaders also have that sense of enthusiasm and expectancy in the air. So the numbers are so stacked up that one knows that Jaswant Singh is not going to win. Hamid Ansari Sahab is going to win. So that shows in the kafila, caravan, the air of expectancy, whatever the crowd, the leaders. And the other thing, which you know, I will say it since it has come to my mind. I know this, that when Bhairob Singh Shekhawat was the vice presidential nominee, first time, when he was going to win, there was a completely different sense of atmosphere, the manner in which he was carried out. When he filled in his presidential nomination, the NDA and the party just ditched him. They just stayed away. And similarly, they have found a candidate in Jaswant Singh, so they'll go and vote for him, but they'll stay away because there is no enthusiasm and there is no feeling of, you know, that belonging or that, you know, that whole. Right. So they have got a candidate to keep the NDA intact. Absolutely. And now the candidate may well be on his own. You know, from there on. On the D-Day they'll go and vote. Yeah. So that's the real story. You absolutely. Know, there's no doubt about the fact that the dice is heavily loaded in favor of Dr. Mohammad Hamid Ansari. But let me tell you that Dr. Hamid Ansari's candidature was announced at the UPA meet, which happened last Saturday. And after his candidature was announced, Dr. Mohammad Hamid Ansari, he thanked all his party people, he thanked UPA chairperson Sonia Gandhi. So let's exactly listen to what Dr. Ansari had to say. ये सम्मान जो मुझे दिया गया है, मैं उसको बहुत इनकसारी के साथ कबूल करता हूँ और मोहतरम प्रधानमंत्री जी, मोहतरम चेयरपर्सन यूपीए और बाकी जितनी पार्टियां हैं, उन्होंने समर्थन जो दिया है
और ये समझते हुए कि जो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दोबारा एक्सेप्ट करना, मैं इसके लिए उन सब का बहुत आभारी हूँ। और उपराष्ट्रपति पद के लिए मोहम्मद हामिद अंसारी के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुशी जाहिर की थी। Well, we are all very delighted that there is such a massive support for renomination of Hamid Ansari Sahib to the august office of the Vice President. और अब एक नजर डालते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी के अब तक के सफर पर। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपने कार्यकाल में कई अहम कदम उठाए हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने कामकाज को बेहद गरिमा के साथ संचालित किया। उनके फैसलों को लेकर सरकार या विपक्ष की तरफ से कभी सवाल नहीं उठे। उन्होंने सदन के प्रति सरकार को और जवाबदेह बनाने और सांसदों की भूमिका को व्यापक बनाने के लिए कई कदम उठाए। 75 साल के मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म 1 अप्रैल 1937 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए किया। 1961 में वो भारतीय विदेश सेवा से जुड़े। बगदाद, रबात, जेद्दा और ब्रसेल्स के भारतीय मिशनों में काम करने के बाद वो संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे। 1980 से 1985 के बीच वो भारत सरकार के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जैसी जिम्मेदारियां भी संभाली। शिक्षा से भी उनका गहरा रिश्ता रहा है। 2000 से 2002 के दौरान वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वहां उन्होंने कई सुधारों को लागू किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के वो विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। 2004 से 2006 के दौरान इंडिया यूके राउंड टेबल के सह अध्यक्ष और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी रहे। 2004-05 के दौरान उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ऑयल डिप्लोमेसी संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम किया और जम्मू कश्मीर में विश्वास बहाली समेत कई अहम कामों से जुड़े रहे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहने के दौरान मार्च 2006 से जुलाई 2007 के दौरान उनकी भूमिका शानदार रही। खासतौर पर गुजरात दंगा पीड़ितों के पुनर्वास, उनको मुआवजा दिलाने और सद्भावना के लिए किए गए उनके प्रयासों की व्यापक सराहना हुई। 11 अगस्त 2007 को उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने मजबूती से भारत के हितों और पक्ष को रखा। सदन के सभापति के रूप में कई ऐसे मौके आए जब मोहम्मद हामिद अंसारी ने सैद्धांतिक और पेचीदा मामलों पर लोहा मनवाया। महिला आरक्षण बिल और लोकपाल बिल 2 ऐसे मौके थे जब उन्होंने साबित किया कि वो किसी दबाव को नहीं मानते। मोहम्मद हामिद अंसारी ने राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन की कार्यवाही सुचारू रखने और समय का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए कई सुधार लागू किए। उन्होंने शून्यकाल में मामला उठाने के लिए हर सांसद के लिए 3 मिनट का समय तय किया। तारांकित सवालों के दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया। उन्होंने हर सांसद को सदन में बोलने का मौका देने के लिए कई अहम कदम उठाए। सांसदों और पार्टियों को समय दिए जाने की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया। इसके लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लाया गया। पश्चिमी एशियाई राजनीति पर उनकी पुस्तक ट्रैवलिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट काफी चर्चा में रही, जबकि उनके द्वारा संपादित पुस्तक ईरान टुडे 25 इयर्स आफ्टर द इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी काफी सराही गई। 1984 में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अब सीधे रुक करेंगे संसद भवन।